Jai Bharat, dear all Advaitiyans, good morning everyone. So in our last segment, we discussed about the classification of Monera based on its locomotor structure like flagella, right? On the basis of flagella, we classified Monera or bacteria into two categories, Atrichus and Trichus. And Trichus is further classified into sub 5 category, Monotrichus, Amphitrichus, Cephalotrichus, Lophotrichus and Peritrichus, right? Now we are proceed for the second classification of Monera or bacteria. Let us proceed for that, right? So let us start with this lecture. Here we are talking about the classification of bacteria. Here we are talking about what? Classification of bacteria based on stain, right? And here we are talking about the Gram stain. So classification of bacteria based on Gram stain, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन ग्राम स्टेन. अब ये जो ग्राम टेक्निक जो है, right, to stain the bacteria, that was discovered by, we can say that was discovered by Hans Christian Gram, right? This procedure was given by means to stain a bacteria, right? That procedure is given by Hans Christian Gram, and based on that we said that it is a gram positive, gram negative. So basically there are two type of bacteria, one which is known as gram positive bacteria and the other one is considered as gram negative bacteria, right? And that is based on gram stain. Okay, let us talk about the morphological structure of these two bacteria. If we talk about the gram positive bacteria, then the innermost layer in gram positive bacteria, we have already seen a structure of a bacteria in a chapter of a cell, right? Prokaryotic cell. So the innermost layer in gram positive bacteria is plasma membrane and same as in gram negative bacteria. So the innermost layer is what? Innermost layer is a plasma membrane. Now outer to this plasma membrane layer there is a cell wall. There is another layer, right? For example, in gram positive bacteria, here we have one additional layer, right? This is the additional layer which are located just outside the plasma membrane, right? And that layer is nothing but the cell wall. वो layer कौन सा है? It is nothing but the cell wall. Same kind of cell wall is also present in gram negative bacteria, means location are same, right? But gram negative bacteria has a thinner cell wall as compared to gram positive bacteria. ठीक है? तो gram negative bacteria जो हैं, वो gram negative bacteria जो हैं, उसमें cell wall जो है, the layer of cell wall is thinner as compared to gram positive bacteria. ठीक है? तो cell wall देखिए gram positive में कैसा है? It is thicker. gram negative में कैसा है? It is a thinner, right? Comparison की बात करें. अब अगर हम cell wall के structure की बात करें, then cell wall is made up of peptidoglycan, right? This is the basic substance, and same way here also there is a peptidoglycan. ठीक है? तो दोनों की सेल वॉल में एक मेन कंपोनेंट है, दे आर सेम, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन. लेकिन इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वन मोर सब्सटेंस इज आल्सो प्रेजेंट, दैट इज नोन एज टिकोइक एसिड. व्हाट इट इज कॉल्ड? टिकोइक एसिड. एंड सच काइंड ऑफ टिकोइड एसिड इज एब्सेंट, दैट मीन्स हियर इट इज विदाउट टिकोइक acid. So cell wall of gram negative bacteria is without teichoic acid
and cell wall of gram positive bacteria is with teichoic acid, right? So if we compare these two bacteria, till now we have two differences. Gram positive bacteria has thick cell wall, gram negative has thin wall. Gram positive bacteria has teichoic acid containing cell wall. Here it is without teichoic acid, right? Now in gram negative bacteria, one additional layer which is present outside the cell wall is known as, or we can say that layer is made up of a lipoprotein. Mainly this layer is made up of lipoprotein, और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं इन अ चैप्टर ऑफ अ सेल व्हेन वी डिस्कस अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल, तब हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी, ठीक है? तो यहाँ पे जो आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, किसमें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, दैट आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन लेयर. वो क्या है? लिपोप्रोटीन. समटाइम इट्स ऑल्सो हैविंग अ polysaccharide and phospholipid as well, polysaccharide and phospholipid as well, but mainly it has lipoprotein. mainly क्या होगा उसमें? लिपोप्रोटीन. तो देखिए कि ये लिपोप्रोटीन लेयर जो किसमें नहीं है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं है. अब सपोज हम इसको स्टेन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो मैंने अलग अलग कलर के पेन यूज करके आपको दिखा दिया, लेकिन टेक्निकली जब हम बैक्टीरिया को स्टेन कर रहे हैं तो उसके स्टेप्स जो क्या होंगे, ठीक है? सो लेट अस टॉक अबाउट द स्टेप्स ऑफ स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है? हम सारे अलग अलग स्टेप्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं टू स्टेन द बैक्टीरिया. उसमें जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज टू फिक्स अ बैक्टीरिया बाय हीट. टू फिक्स a bacteria on slide by heat, by giving a heat. अब यहाँ पे क्या होगा कि सपोज आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे सपोज ऐसे कोई हमारे पास क्या है, स्लाइड है, ठीक है, और स्लाइड के ऊपर हमने बैक्टीरिया जो है उसके कल्चर से, ड्रॉपर से हमने क्या लिया, सॉल्यूशन लिया, एंड वी पुट दैट सॉल्यूशन ऑन द स्लाइड. तो उसमें बैक्टीरिया होंगे, एंड देन फ्रॉम द लोअर साइड वी प्रोवाइड हीट टू. यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वी प्रोवाइडिंग अ हीट, ठीक है. उससे क्या होगा? उससे वो बैक्टीरिया जो है वो फिक्स हो जाएंगे किसके ऊपर? स्लाइड की सरफेस पे, राइट? सो बेसिकली वी फिक्स द बैक्टीरिया बाय प्रोवाइडिंग अ हीट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट? नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड स्टेप, दैट इज add crystal violet. Add crystal violet on this slide for 30 second to 1 minute. ठीक है, इस स्लाइड पे जिसको हमने क्या किया था, बैक्टीरिया को by providing a heat we fix that bacteria on the slide. अब उसको हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? we provide a crystal violet. हमने क्या प्रोवाइड किया? crystal violet, right? Now the next step is wash the slide. Next step is wash the slide with water. अब हमने स्लाइड को किससे साफ कर लिया? with the water. Now the next step is add gram iodine. Add gram iodine on slide. अब स्लाइड के ऊपर हम क्या ऐड कर रहे हैं? वी आर एडिंग और वी आर प्रोवाइडिंग अ ग्राम आयोडीन. हमने क्या प्रोवाइड किया? ग्राम आयोडीन. एंड दैट इज ऑल्सो फॉर 30 सेकेंड टू 1 मिनट. फॉर 30 सेकेंड टू 1 मिनट, ठीक है. जब हमने ये 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक हमने क्या प्रोवाइड किया? ग्राम आयोडीन. पहले हमने क्या किया? वी फिक्स द बैक्टीरिया ऑन द स्लाइड बाय प्रोवाइडिंग अ हीट. देन वी यूज क्रिस्टल वायलेट, राइट? Then we wash the slide. Then again we use another stain which is known as a gram iodine, right? And after using this gram iodine, just still the slide for a while. And if you see that slide under the microscope, all bacteria are become purple. All bacteria are become purple. तो यहाँ पे सारे बैक्टीरिया जो हैं वो कैसे हो जाएंगे? दे आर इन पर्पल कलर, ठीक है. ये सपोज वो सारे बैक्टीरिया दे आर पर्पल इन कलर, ठीक है.
अब सपोज ये पर्पल कलर के बैक्टीरिया जो है आपको दिख रहे हैं, ठीक है, स्लाइड में, राइट। अब अगर हम बात करें, नाउ वी आर यूजिंग, नाउ नेक्स्ट वी आर यूजिंग और वॉश द स्लाइड, or wash the slide with 90% acetone, 90% acetone और अल्कोहल। अब हम क्या यूज कर रहे हैं, 90% एसीटोन यूज कर रहे हैं या फिर हम क्या यूज कर रहे हैं, 90% अल्कोहल यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उस टाइम पे हम क्या किसको वॉश कर रहे हैं, ये पर्पल कलर बैक्टीरिया जो, उसको हम क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पूरे प्रोसेस से क्या होगा, सम ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम दिस ग्रुप आर रिमेन पर्पल इन कलर इवन आफ्टर यूजिंग अ 90% acetone or alcohol, but some of the bacteria lost their color, some of the bacteria lost their color। कई सारे बैक्टीरिया ऐसे होंगे कि जो अपना कलर जो है, पर्पल कलर जो है, they lost that color, ठीक है। तो ये जो ग्रुप हमने बनाया, they lost their color। लेकिन जब उस बैक्टीरिया को आप क्या प्रोवाइड करोगे, राइट, जो पर्पल कलर बैक्टीरिया नहीं है, when we use a safranin, when we use a safranin, ठीक है, safranin is nothing but the stain, ठीक है, तब ये जो कलरलेस बैक्टीरिया है, they become a red in color। वो क्या, कौन सा कलर वापस गेन कर देंगे, रेडिश कलर जो है वो गेन कर लेंगे। दैट बैक्टीरिया is considered as gram negative bacteria, and those who are remain pulper even after using a acetonol alcohol 90%, right, they are considered as gram positive bacteria, ठीक है। तो पूरी प्रोसीजर अगर आप देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, बैक्टीरिया को फिक्स किया स्लाइड के ऊपर, फिर हमने क्या किया, क्रिस्टल वायलेट यूज किया, फिर हमने वॉश कर दिया, फिर वापस हमने दूसरा स्टेन यूज किया, दैट इज ग्राम स्टेन, ठीक है। फिर all bacteria become purple, then we again wash that slide, but this time not with the water, with 90% acetone or alcohol। some of the bacteria are remain purple in color and some lost their color। color lost bacteria जो है उसको हमने क्या प्रोवाइड किया, सैफरनिन, they become a reddish in color। अब ये पूरी प्रोसीजर में हुआ क्या, ठीक है। अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमने यहाँ पे कौन कौन से स्टेन यूज किए, वी यूज क्रिस्टल वायलेट प्लस वी यूज ग्राम आयोडीन, ठीक है। क्रिस्टल वायलेट और ग्राम आयोडीन जब आप यूज कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, पहले हमने इस बैक्टीरिया को, हमको मालूम नहीं है कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या नहीं है, लेकिन हुआ क्या, जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव थे, जब उसमें आपने क्रिस्टल वायलेट एंड ग्राम आयोडीन यूज किया, तो वो जो स्टेन था दैट विल रीच टू द सेल, दैट विल रीच टू द सेल वॉल। कहाँ तक वो पहुंच जाएगा, सेल वॉल। क्यों, क्योंकि उसकी आउटर सरफेस पे क्या नहीं है, लिपोप्रोटीन का लेयर नहीं है, राइट। सो दिस बैक्टीरिया इज बिकम पर्पल एंड रिमेन पर्पल इवन आफ्टर यूजिंग एसीटोन और अल्कोहल, राइट। तो वो पर्पल कलर में लास्ट तक रहेंगे एंड दैट इज ग्राम पॉजिटिव। एंड अगर हम यहां पे बात करें, यही चीज सपोज कौन सी, क्रिस्टल वायोलेट और ग्राम आयोडीन हमने इसमें भी यूज किया था, क्योंकि दोनों मिक्स ही थे, ठीक है। तो यहां पे ये जो स्टेन है दैट विल एक्यूमुलेट in a layer of a lipoprotein, but it will not penetrate up to the cell wall। तो इनिशियली जो पर्पल कलर डेवलप हुआ था, that is due to accumulation of this stain on the surface of a lipoprotein layer, but then after this bacteria, when we use what, when we use 90% acetone or alcohol, at that time this purple color bacteria lost its purple color। पर्पल कलर जो है वो क्या हो जाएगा, इट विल लॉस्ट, राइट। क्यों, क्योंकि पर्पल कलर जो है वो सरफेस पे ही था, कहाँ पे, लिपोप्रोटीन लेयर पे, वो सेल वॉल लेयर में वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ था, सेल वॉल तक वो पहुंचा ही नहीं, ठीक है। लेकिन व्हेन वी यूज व्हाट, व्हेन वी यूज सैफ्रेनिन, जब हम क्या यूज करेंगे, सैफ्रेनिन, तो सैफ्रेनिन जो है दैट कैन पेनिट्रेट और दैट कैन क्रॉस विच लेयर, लिपोप्रोटीन लेयर। वो किसको क्रॉस कर सकता है, लिपोप्रोटीन लेयर को। तो अब ये अगर हम बात करें, तो ये जो कलरलेस बैक्टीरिया है दैट बिकम रेड, ठीक है। तो वो रेड कलर के क्यों हुए, क्योंकि सैफ्रेनिन जो कहां तक पहुंच गया, सेल्यूलोज तक। लेकिन वो इसलिए क्योंकि वो लिपोप्रोटीन लेयर को क्रॉस कर सकता है, ग्राम स्टेन को क्रॉस नहीं कर सकता। ग्राम स्टेन जो इसको
क्रॉस नहीं कर पाएगा. एंड दैट इज वाई बेस्ड ऑन दिस एंटायर प्रोसीजर we classified bacteria into gram positive and gram negative bacteria based on whether they stain with the gram stain or not. अगर स्टेन हो रहा है तो वो ग्राम पॉजिटिव है, अगर नहीं हो रहे तो क्या है, ग्राम नेगेटिव. स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है वो हम जानते हैं. इसमें पॉजिटिव में थिक सेल वॉल, इसमें थिन सेल वॉल, इसमें सेल वॉल विद टिकोइक एसिड, इसमें सेल वॉल इज विदाउट टिकोइक एसिड, इसमें लिपोप्रोटीन लेयर इज प्रेजेंट, इसमें लिपोप्रोटीन लेयर इज एब्सेंट. ठीक है. अब एक चीज़ यहाँ पे ये भी याद रखो कि ये दोनों बैक्टीरिया में से ज़्यादा अगर हम बात करें जो बैक्टीरिया इन्फेक्टियस है या फिर जो बैक्टीरिया हम में डिजीज पैदा कर सकता है, दैट इज ग्राम नेगेटिव. वो इसलिए क्योंकि ग्राम नेगेटिव जो है उसके नंबर ऑफ लेयर कैसे हैं, ज़्यादा. अगर नंबर ऑफ लेयर ज़्यादा है तो कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हो, ये जब तक ये मेम्ब्रेन जो है वो इसको डिजोल्व नहीं करेगा तब तक ये बैक्टीरिया जो हो दैट विल रिमेन अलाइव. ठीक है. तो उसका मतलब ये है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज मोर डेंजरस देन द ग्राम पॉजिटिव. वैसे तो दोनों ही खतरनाक है, लेकिन ग्राम नेगेटिव इज मोर डेंजरस बिकॉज इट हैज many layers on it, right? So this is the second classification based on gram stain, right? इससे पहले हमने जो देखा that is based on locomotor structure flagella, जिसमें हमने ट्राइकोस से ट्राइकोस दिखा. Now the next classification is based on, right? That is bacterial classification, or we can say that classification of bacteria based on respiration. Classification of bacteria based on respiration. ठीक है. अब respiration जो है that is a need of every living organism, और respiration से हमको मिलता क्या है, एनर्जी, राइट. तो यहाँ पे अगर हम बात करें respiration, it is a process which is performed by every single living organism, और उसको क्या प्रोवाइड होगा, एनर्जी. एंड दैट एनर्जी विल बी यूटिलाइज टू परफॉर्म अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस. ठीक है. वो एनर्जी हम यूज किस में करेंगे, अदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में. ठीक है. तो एनर्जी जो है दैट इज मस्ट. लेकिन यहाँ पे अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन जो है दैट इज ऑफ टू टाइप. रेस्पिरेशन जो है उसके कितने टाइप है, रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप. ठीक है. और वो आप पढ़ चुके हो सेकेंडरी में भी. वन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड द अदर वन दैट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो एक रेस्पिरेशन ऐसा है विच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड वन विच विल टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. जो रेस्पिरेशन in presence of oxygen हो रहा है, right, means oxygen is required for this respiration, is known as aerobic respiration. उसको हम क्या बोलेंगे, aerobic respiration. ठीक है. and those which are in absence of oxygen they are known as a anaerobic respiration. उसको हम क्या बोलेंगे, anaerobic respiration. तो respiration के दो टाइप हो गए, aerobic respiration which takes place in presence of O2, anaerobic respiration which takes place in absence of O2. ठीक है. ओके. अब aerobic respiration जो है वो आप पढ़ चुके हो, राइट. और there are number of steps for this process. The first one is glycolysis, right. Now the second step is Krebs cycle. Third step is nothing but the ETC, electron transport chain, and the last process is oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation, right. So these are the four steps for aerobic respiration. First one is glycolysis, then Krebs cycle, then ETC and oxidative phosphorylation. ठीक है. अब glycolysis की अगर हम बात करें तो हम ये जानते हैं कि during the process of glycolysis one molecule of glucose will be converted into 2 molecule of pyruvic acid. ये हम जानते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए हम बात तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो चैप्टर हम फिजियोलॉजी में पढ़े हैं, प्लांट फिजियोलॉजी में, राइट, दैट इज अ एरोबिक रेस्पिरेशन इन यूकैरियोटिक सेल. लेकिन यहाँ पे तो हम मोनेरा की बात करें.
तो मोनेरा जो है दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो डिफरेंसेस जो है वो दोनों में क्या है वो आपको खास याद रखना है। अगर हम बात करें ग्लाइकोलिसिस की, ठीक है, सो इन यूकैरियोटिक सेल ग्लाइकोलिसिस, प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, और यहां पे भी अगर हम बात करें तो जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है दैट टेक्स प्लेस इन अ साइटोप्लाज्मिक रीजन। तो वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में सेम ही है। ग्लाइकोलिसिस कहां पे होगा? साइटोप्लाज्मिक एरिया में। सेकंड जो है दैट इज क्रेब्स साइकिल। अब याद कीजिए कि यूकैरियोटिक सेल में क्रेब्स साइकिल कहां पे होता था, राइट? द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन अ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहां पे हो रहा था वो? इन अ मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो दैट इज मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल, और हम तो बात करें मोनेरा की, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल की, कि जिसमें मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहां पे वो प्रोसेस कहां पे होगा? यहां पे वो प्रोसेस जो है दैट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म ओनली, ठीक है। तो यहां पे क्रेब्स साइकिल भी कहां पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है, बिकॉज इन prokaryotic cell they do not have membranous bound organelles or a structure like mitochondria, ठीक है। अब अगर हम ETC की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जो कहां पे हो रहा था? वो हो रहा था इनर मेम्ब्रेन ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया, बट द रीजन दैट इज विदाउट क्रिस्टी, है ना? ओके, वहां पे क्या हो रहा था? ETC। लेकिन यहाँ पे अगेन माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं, बट दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और पर्टिकुलरली अगर हम बात करें दैट इज मेसोसोम पार्ट। हम ये पढ़ चुके कि ये सपोज बैक्टीरिया है दैट शोज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड जो उसको हम क्या बोल रहे थे? मेसोसोम, राइट? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बहुत सारा है, लेकिन ये जो इनफोल्ड्स बना है दैट इज मेसोसोम, एंड मेसोसोम इज नथिंग बट द एनालॉग टू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। ये आप पढ़ चुके हो सेल वाले चैप्टर में, ठीक है। लेकिन कौन सी प्रोसेस यहां पे होगी? ETC, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कौन से पार्ट में? मेसोसोम। और मेसोसोम वो पार्ट है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो हैं वो सारे होंगे, राइट? नाउ द लास्ट प्रोसेस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। Again, if we talk about the eukaryotic cell, this process takes place in cristae membrane, right? Means inner membrane of a mitochondria which contain a cristae, that is oxysome part, right? लेकिन अगेन यहाँ पे तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि हम बात करें मोनेरा की, उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, राइट? सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो भी कहाँ पे हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो लोकेशन है फॉर दिस स्टेप्स दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपको देखना है कि यूकैरियोटिक सेल पूछा है या फिर प्रोकैरियोटिक सेल, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम एनएरोबिक की रेस्पिरेशन की बात करें मोनेरा में, देन इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, ठीक है। उसके लिए 3 टर्म है। द फर्स्ट टर्म इज नोन एज फर्मेंटेशन, उसको हम क्या बोलेंगे? फर्मेंटेशन। Now the second term is putrefaction, and the third step is nothing, or third category is nothing but the decaying, right? तो यहाँ पे देखिए कि हमने 3 टर्म, ये तीनों टर्म जो है वो रिलेटेड है, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। लेकिन ये तीनों टर्म जो है वो पर्टिकुलरली आप यूज कर सकते हो। कैसे? अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, अगर एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, RS का मतलब क्या होगा? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, अगर वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो नॉर्मली देखिए कि आप रेस्पिरेशन पढ़ चुके हो, उसमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? हेक्सोस शुगर, और वो भी कौन सा? ग्लूकोज। और इसलिए देखिए हम रेस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ग्लूकोज से, राइट? अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं हुआ तो क्या होगा? लिपिड। अगर लिपिड नहीं है तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो सकता है? प्रोटीन हो सकता है, राइट? बट द मोस्ट कॉमन इज कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी हेक्सोस शुगर। ओके, तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, देन ओनली यू कैन यूज द टर्म फर्मेंटेशन, तभी आप फर्मेंटेशन टर्म जो यूज कर सकते हो। अब कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें क्या हुआ? एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, तो उससे क्या फॉर्म होगा? उससे फॉर्म होगा C2H5OH मीन्स इथाइल अल्कोहल। क्या फॉर्म होगा? C2H5OH मीन्स इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, राइट?
दैट इज अराउंड 2 ATP। चलिए, क्योंकि वहां पे सिर्फ ग्लाइकोलिसिस हुआ है तो 2 ATP, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तब जाके आप यूज कर सकते हो टर्म फर्मेंटेशन, राइट। इफ द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज प्रोटीन, if the respiratory substrate is protein that undergoes anaerobic respiration and it releases energy, then you can use that word putrefaction. That kind of a anaerobic respiration is known as putrefaction. And if the organic compound is other than carbohydrate, or we can say that any other, okay, not other than, but respiratory substrate is any other organic material, but except what? Except carbohydrate. अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो हम फर्मेंटेशन यूज करेंगे, प्रोटीन होगा दैट इज नोन एज प्यूरिफिकेशन। लेकिन ये दोनों के अलावा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज डीकेइंग, और इसमें भी क्या रिलीज होगा? एनर्जी जो है वो रिलीज होगा। और ये तीनों प्रोसेस जो है, राइट, दैट कुड बी लीड बाय द एनएरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये रेस्पिरेशन हो गया, एरोबिक, एनएरोबिक। अब एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर हम ये बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दैट बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरी में बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किया गया है। एक कैटेगरी जिसमें हम उसको बोलेंगे एरोब्स, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज एनएरोब्स। तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज फैकल्टेटिव एरोब्स। और चौथी जो कैटेगरी है दैट इज नोन एज फैकल्टेटिव एनएरोब्स। चलिए, अब सब कैटेगरी जो है वो सीक्वेंस में एक बार देख लेते हैं, ठीक है, बारी बारी देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट कैटेगरी जो हो क्या है? फर्स्ट कैटेगरी जो है दैट इज एरोब्स, ठीक है। हम रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग ही ये क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? एरोब्स। अब एरोब्स जो बैक्टीरिया है, अगर हम उसकी बात करें तो उनके सर्वाइवल के लिए प्रेजेंस ऑफ O2 इज मोस्ट, ठीक है। फॉर देयर सर्वाइवल presence of O2 और ऑक्सीजन is must। उसका मतलब ये है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मस्ट, उसका मतलब ये है कि एरोब्स बैक्टीरिया जो हैं उसके लिए, उसके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन जो है वो बहुत ही जरूरी है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मस्ट। अब अगर हम बात करें एनएरोब्स की, सेकेंड कैटेगरी एनएरोब्स, राइट। फॉर सर्वाइवल एब्सेंस ऑफ O2 इज मस्ट। मतलब एनएरोबिक बैक्टीरिया के लिए, ठीक है, एनएरोबिक अगर हम बात करें तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं कि फॉर देयर सर्वाइवल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मस्ट। मतलब ये एनारोब्स जो बैक्टीरिया हैं दैट कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन नहीं होगा, उसी में उसका मेटाबॉलिज्म जो नॉर्मल चलेगा। तो एरोब्स के लिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मस्ट, एनारोब्स के लिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मस्ट। ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए तब जाके वो सर्वाइव होंगे। अब दो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा हमने? फैकल्टेटिव एरोब्स लिखा है। क्या लिखा है मैंने? फैकल्टेटिव एरोब्स, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दोनों कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली दे आर एनारोब्स, normally they are anaerobes but can survive in presence of O2। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए क्या लिखा है मैंने। बैक्टीरिया कौन सा है? फैकल्टेटिव एरोब्स है। फैकल्टेटिव का मतलब होता है दे आर मोर एडेप्टेड, राइट। फैकल्टेटिव का मतलब क्या है? दे आर एडेप्टेड। किसके लिए एडेप्टेड है? लिखा क्या है हमने? फैकल्टेटिव एरोब्स, ठीक है। लेकिन नॉर्मली वो कैसे है? नॉर्मली दे आर एनारोब्स। सो नॉर्मली दे आर एनारोब्स बट कैन सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ O2।
तो O2 जो है उसकी प्रेजेंस के प्रति वो कैसे हैं, एडेप्टेड है, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज अ फैकल्टेटिव एरोब्स। तो लिखा है फैकल्टेटिव एरोब्स, मतलब ऑक्सीजन जो है उसकी प्रेजेंस के प्रति अगर हम बात करें तो वो एडेप्टेड है, मतलब वो नॉर्मली कैसे है, नॉर्मली दे आर एनारोब्स बट कैन सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ O2, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज फैकल्टेटिव एरोब्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, फैकल्टेटिव एनारोब्स, ठीक है, तो यहां पे अगर हम बात करें देन नॉर्मली they are aerobes but can survive in absence of O2। अब इसको भी ध्यान से देखिए, फैकल्टेटिव एनारोब्स है, ठीक है, तो उसका एडेप्टेशन क्या है, एडेप्टेशन ये है कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी वो सर्वाइव कर रहा है, तो उसका मतलब ये है कि नॉर्मल वो कैसे है, नॉर्मल दे आर एरोब्स, ठीक है। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स नॉर्मली दे आर एरोब्स बट कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है। तो फेवरेबल उसके लिए क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो दैट इज फेवरेबल, और इसलिए वो कैसे है, एरोब्स, बट अगर वो नहीं है तो भी वो सर्वाइव करेंगे इन एब्सेंस ऑफ O2, दैट इज व्हाई दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। अब फैकल्टेटिव एरोब्स तो नॉर्मली वो एनारोब्स है, मतलब उसको चाहिए क्या, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन अगर ऑक्सीजन है कैन सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल, तो इसलिए वो क्या है, फैकल्टेटिव एरोब्स। ये चारों बैक्टीरिया में कंपेयर टू एरोब्स एंड एनारोब्स, सिंपली एरोब्स एंड सिंपली एनारोब्स, फैकल्टेटिव एरोब्स एंड फैकल्टेटिव एनारोब्स दे आर मोर इवॉल्व बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि उसने एडेप्टेशन जो है वो किया है। सो हियर वी आर डन विद द थर्ड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेस्पिरेशन। हमने अभी तक 3 क्लासिफिकेशन देखे। फर्स्ट वन वाज बेस्ड ऑन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, सेकंड वन वाज बेस्ड ऑन स्टेन, ग्राम स्टेन, third one based on respiration, right? In next part we will discuss about the classification of Monera based on its mode of nutrition as well as reproduction. Thank you so much Bacha Party, love you all. Stay tuned with Advait Achievers YouTube channel. Vidyarthi Devo Bhava. Jai Bharat.